Assalamu alaikum and good morning to everybody. We have been joined by our speaker of the day, Dr. Praveen Malik. Most welcome to this program, sir. We heartily welcome you on this platform. Dr. Praveen Malik, sir. Good morning, Dr. Saab. Very good morning, sir. Sir, most welcome, sir. Thank you very much, really humbled, and we have been blessed by your presence this morning. नहीं डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज बहुत दिन तक आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया. इनफैक्ट सच अ बिजी शेड्यूल एट सेंटर. मेरे को भी नहीं लगता था इस नौकरी में आने से पहले कि इतना बिजी होता होगा, बट आफ्टर दिस कोविड एब्सोल्युटली डैम बिजी. मतलब एवरी टाइम वी आर जस्ट इन दिस. कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला, वो हमारे लिए बहुत है, सर. अरे नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. That's enough for us. Thanks a lot, sir. You have been over here on this platform. So, in the name of Allah, the most beneficent and merciful, let us start the proceedings of this program. As this is a long program of 2 months duration, and this is perhaps the third webinar, wherein we have a functionary from Government of India, Dr. Praveen Malik, who is presently the Commissioner, Animal Husbandry, Department of Animal Husbandry, Government of India. Dr. Praveen, if I can have a brief about him, is a veterinary graduate from Patnagar University, Patnagar, and he is a doctorate in veterinary microbiology. Then he has been a recipient of many fellowships with National Academy of Veterinary Sciences, India. He has some 28 years of research experience and is a veterinary microbiologist, health animal diseases. He worked on surveillance of diseases in free-ranging wildlife, equine infectious anemia, strangles in equines. He has been instrumental in development of ELISA for glanders, EIA, ELISA, AGID, Salmonella, abortus equi, OAP-based vaccine candidate for Salmonella abortus equi. Also worked as an in-charge veterinary type cultural collection, that is a repository of animal microbes. He has also been director of National Institute of Animal Health, concerned with the licensing of veterinary biologicals. This was a brief about our speaker of the day. Sir, we have the participants. Those are our outgoing graduates, the internees, and some postgraduate students with us. So the main aim of this program, that's you can see a hybrid program wherein we have physical interactions as well as webinars. And the main aim of this program is to just make those students which are outgoing acquainted about the opportunities they can have besides the government jobs. Since we have now the government policies that skill development, our graduates must be fully skilled to be absorbed in any of the field, not only the veterinary field or government jobs, or they are well empowered so as to become job providers rather than job seekers. So that was our main aim in this, and we have a series of webinars and physical interactions with different agencies, different entrepreneurs, experts, and all that. So you are one of them. Since you are in the Government of India, we will be looking for many schemes, many programs which the Government of India has launched to provide the entrepreneurship or to just strengthen them, empower our graduates to come out of those government jobs and establish their own entrepreneurs. So we have been joined with us Dean of the Faculty, Professor Tufail Ahmed Bande, our Associate Director Research, Professor Azmat Alam Khan, many other faculty members, and they are also with us this morning. So before I formally invite the speaker of the day for its presentation, let me first request our Dean of the Faculty, Professor Tufail Ahmed Bande,
Professor Bande sir, please unmute yourself and have some words of wisdom with the audience, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to everybody. Thank you, Dr. Pampuri sir, for giving the brief objectives about the program. Well, the aim of this program is to nurture the veterinary graduates to become tomorrow's entrepreneurs who will be able to run their own units. In this regard, SCOST Kashmir intends to create and promote the students and faculty-driven innovations and startup ecosystem in the university. Entrepreneurship ecosystem will play the key role in identifying them and managing the innovatives and entrepreneurs for identifying their potential in this regard. Here we planned this program in view of the COVID pandemic, as there was almost lockdown in the whole of the country. And this, in the university, the NEHAP, who is sponsoring this series of webinars for entrepreneurship avenues in livestock sector for young budding vets of SCOST, involving in the present program, the various sectors of livestock sector. The students who are the budding graduates or the master students, they will get benefited in this program. So here in this program, we have also tagged up different well-known speakers in their area of specialization for exploring the new avenues for putting their entrepreneurs and for getting involved in this sector. So I welcome Dr. Praveen Malik from his Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry, Government of India. I welcome you, sir. Thank you. Over to Dr. Pampuri. Thank you, sir. Thank you. This was our Dean of the Faculty who has welcomed the speaker of the day, Dr. Praveen Malik. Sir, I do realize your engagements, your busy schedule. So I won't be there for much of the time. Let me invite you formally for your lecture, please. Unmute yourself, sir. Thank you, Dr. Pampuri. Thank you very much. Honorable Dean, Faculty of Veterinary Sciences, Quest, Kashmir, Dr. Tofil Ahmed Bande, Dr. Pampuri, Professor, other faculties of the college, senior students, doctors in this webinar. Thank you very much for inviting me. हिंदी इंग्लिश में चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, मेरे लिए आसान हो गया। कल हम लोग बैठे थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पास बैठा था, वो एक रेबीज पे सेमिनार अटेंड कर रहे थे। जी सर, जी सर। कल तो पूरे हिंदुस्तान में रेबीज के लिए चल रहा था प्रोग्राम। जी, हमारे कल मैं उनसे हंस रहा था। मैंने कहा जिस साइंस को हमें समझना चाहिए उसमें जॉइंट सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझनी चाहिए उसको हम कल एड्रेस करेंगे। एग्जैक्टली, बात सही है सर। यू आर द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो पर मौका है सर, बैठे हैं हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बात करते हैं तो मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं सर। 4-6 स्लाइड मैंने हमारे पास आपके जम्मू का कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर अतुल आनंद। उनसे मैंने कहा कि 2-4 मेरे को स्लाइड बना दो, मैं कुछ बोल सकूं। तो उन्होंने मेरे को कुछ बना के दिया है सर। मैं देखता हूं उसमें क्या क्या काम की चीज निकल के आती है। स्लाइड दिखाई दे रही है सर? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। परफेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं जरूर एक चीज और चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को, किसी फैकल्टी को बीच में अगर कोई बात करनी है तो दे कैन रेज हैंड्स एंड दे कैन टॉक टू मी इमीडिएटली रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा ये कि बीच में जितने लोग बैठे हैं प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लें। जब तक आपको बोलना है तो आप प्लीज जरूर से खोलिए और बोलिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं है।
ठीक है सर, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. It is okay, sir. ओके, This is for the So, information of all participants. They can raise their hands and unmute themselves and can directly ask any query if they have. Please note it. सो आपका ये कार्यक्रम जो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप इज रियली वंडरफुल इन द करंट सिनेरियो। आज की डेट में जब हम देखते हैं लाइवस्टॉक सेक्टर के अंदर lot many vacancies are there and then even including those vacancies, अगर मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि जितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स में हैं वो सारी वैकेंसीज को मैं कंप्लीटली फिल कर दूं तब भी हमारी वेटनरी सर्विसेज कंप्लीट नहीं होती हैं। वी हैव गॉट डिमांड ऑफ वेटनरी ग्रेजुएट्स थ्रू आउट, और मुझे जो खुद को महसूस होता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप की शायद हमारे लाइवस्टॉक सेक्टर में है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जैसे हम लोग कभी किसी टाइम में बोला करते थे कि आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास है। जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ह्यूमन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, एनिमल्स में जो हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है in the whole system. So जो हमारी ये requirements हैं इनको पूरा अगर हमें करना है, if we want to actually meet out those basic requirements of food and हम लोग जनरली बोलते हैं animal protein requirements, तो definitely हमारे सेक्टर की बहुत बड़ी वैल्यू है। and it's not only milk, meat or eggs or something, also the other things including wool। तो हाइड जिसका हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों को है, इसमें फीड एंड फॉडर, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लोग अभी तक या तो गवर्नमेंट के भरोसे थे या थोरोली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भरोसे थे। मेजर जो सेक्टर है मेरा इंडिया में 90% के आसपास, 85% के आसपास मान के चलते हैं हम लोग कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंटरप्रेन्योर्स अगर लेके इस सेक्टर को इफ दे कैन कन्वर्ट दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज्ड वन, प्रोबेबली जो ग्रोथ है हमारी आज की डेट में, हम सीजीआर जो बोलते हैं क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, इट इज ऑलमोस्ट 8%। सारे सेक्टर्स को पीछे छोड़ रखा है इसने। सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर हम मानते थे जिसमें 6-7% के करीब ग्रोथ थी, 7.1 के आसपास चल रही है। हमारी पिछले 5 साल की अगर सीजीआर देखें तो हम 8% से ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा लगातार बढ़ रहा है, और हम एग्रीकल्चर के साथ एज ऑन डेट वी आर बीइंग काउंटेड एज एलाइड सेक्टर अलोंग विद एग्रीकल्चर। अगर इंडिपेंडेंटली भी इस सेक्टर को प्रॉपरली देखा जाए तो वी हैव गॉट अ गुड कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल जीवीए। और उस कंट्रीब्यूशन में इफ वी कैन रियली कन्वर्ट दिस सेक्टर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनटू द ऑर्गेनाइज्ड वन, तो शायद ये सेक्टर की जो हमारी जिसे कहते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज इसमें आएंगी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो या एंटरप्रेन्योरशिप की हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और ये कन्वर्जन जो है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो थोड़ी देर 2-1 मिनट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि बेसिकली इस सेक्टर में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर इसको हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने 10th क्लास तक या 11th तक हिंदी पढ़ी है। उद्यम मीन्स होता है मेहनत, तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक मेहनत का काम है जिसमें आपको यू हैव टू ब्रिंग इन न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, और उन आइडियाज को यू हैव टू एग्जीक्यूट। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आइडियाज और इन द फॉर्म ऑफ सम इनोवेशंस एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ दोज आइडियाज। अब जब नए आइडिया होंगे, उनके एग्जीक्यूशन की बात होगी, तो डेफिनेटली एक चीज जरूर होगी कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ रिस्क होंगे। अब ये जो रिस्क है
अगर हम डर गए कि रिस्क है साहब इसमें, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होगा जो इस तरह के रिस्क को बियर करेगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा, और जो उसने अपनी आज तक की लर्निंग की है, चाहे वो आपकी सिस्टमेटिक फॉर्मल लर्निंग हो जो आपने कॉलेज में ली है, या हो सकता है कि इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए या शुरुआत करने के लिए कोई स्टार्टअप, यू हैव टू अंडरटेक सम स्पेसिफिक कोर्सेज विच आर इनफॉर्मल नॉलेज। और वो हो सकता है किसी बगल वाले फार्म के ऊपर जाके एक्सपीरियंस लेना हो, किसी इंडस्ट्री में जाके उनसे एक्सपीरियंस लेना हो, किसी से बात करना हो। सो वो जब सब चीजें मिल जाएंगी आपको, तब आपको जो प्रॉब्लम्स हैं आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि मुझे इस एरिया में बात करनी है, और उस एरिया की जो प्रॉब्लम्स आपने परसीव की हैं उन्हें प्रॉब्लम्स की तरह ना देख के यू हैव टू लुक दैट पर्टिकुलर थिंग एज अपॉर्चुनिटी। आप में से कोई बोल रहे हैं तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज स्पीक अप, नहीं तो काइंडली म्यूट कर लें। थैंक यू वेरी मच। सो जो प्रॉब्लम्स को आप परसीव कर रहे हैं, यू हैव टू परसीव दोज प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। और उस अपॉर्चुनिटी को जो हम एक बेसिक मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करी जाए, कि स्वॉट में होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स and work upon them to strengthen them further. You have to look for your weaknesses and basically convert those weaknesses into your strength. कैसे हो सकती है वो? आपकी एजुकेशन हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है। उसी तरीके से जो हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यूटिलाइज करना है यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स, और जो थ्रेट्स हैं उनको आपको मैनेज करना है and convert those threats into your opportunities. एक बीच में जब कोविड का पीरियड शुरू हुआ तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी एक कॉल आई कि आपदा में अवसर ढूंढिए। तो ये जो चीज है, ये आपदा में अवसर, अगर मैं कहूँ कि यहाँ आपको प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो प्रोबेबली यू विल बिकम अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्वालिटीज भी चाहिए आपको कुछ। आपको आपके अंदर जील होना चाहिए, मतलब खाली एक एटीट्यूड हमारा बनता है जो हम निकलते हैं कि हम तो गजेटेड ऑफिसर हो गए, सरकारी आदमी हो गए, तो बस नौकरी। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करनी है और वहां से शुरू करना है, बिकॉज आप जॉब सीकर होने के बजाय जॉब गिवर हो जाओ, तो उसके लिए चाहिए आपको जील। आपको लगातार काम करना है कि मेरे को सक्सेसफुल होना ही है और इसमें प्रॉब्लम्स है, मैं सब सोल्व कर दूंगा। इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा तो आपका है, दूसरा फायदा सेक्टर को है कि जो प्रॉब्लम्स आपने फोर्सी की है ये आपकी अपनी नहीं है, एक एरिया की नहीं है, ये सेक्टर की प्रॉब्लम है, एंड यू विल बी पार्टनर टू द सिस्टम इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विजन होना चाहिए। एक अगर मोटिवेशन ऐसा हो कि मैं खुद से शुरू करूं, एक टीम वर्क होना चाहिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, इंट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि व्हाट यू कैन डू। सो ऑल दोज थिंग्स इफ यू कंबाइन इन योरसेल्फ प्रोबेबली इज गोइंग टू हेल्प द कंप्लीट थिंग। और ये खाली लाइफ स्टॉक के लिए इन्होंने लिखा है, बट मुझे लगता है ये किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइफ स्टॉक जो है, मैं देखता हूँ जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि मेजर लाइवलीहुड है काफी बड़े सेक्टर के लिए, और जो एज अ वेटनेरियन इस लाइफ स्टॉक सेक्टर में आप किसी भी पिलर में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, प्रोडक्शन में, चाहे न्यूट्रिशन में हो, या ब्रीडिंग में हो, मार्केटिंग में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग फीड फॉर्मुलेशन की इंडस्ट्री भी बन सकती है, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में भी जा सकते हैं, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं, मार्केटिंग जो इनकी कनेक्शंस हैं उसके साथ बात कर सकते हैं, या ओवरऑल एक्सटेंशन सर्विसेज दे सकते हैं इन सब कामों के लिए। और हमारी इस डिपार्टमेंट से जो इनिशिएटिव्स हैं
हमने कोशिश की है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है इन सब फील्ड्स में हम उन्हें कंबाइनली यूज करें। जो हमने क्लाइस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल इसमें हमने शुरुआत की है अपने सेक्टर में, जिसको मैं आगे बताऊंगा, तो वो चीजें इन सारे सेक्टर्स में हमारे काम करती हैं। अगर हेल्थ में देखें आप, टेलीमेडिसिन के हैं, तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिसमें मैंने देखा कि हमारे वेटनेरियन कम हैं और हमारे ये भाई ज्यादा हैं जो इंजीनियरिंग से पास आउट और निकल के आए हैं। वो टेलीमेडिसिन में उन्होंने एप्स डेवलप किए हैं, फिर अपनी एक टीम बनाई, एक्सटेंशन वर्कर्स डाले और उनके साथ वो बात कर रहे हैं पूरे फील्ड में। पंजाब में मैं देख रहा हूँ 1-2 ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। प्राइवेट क्लिनिक्स तो सबको पता है कि आप अपने क्लिनिक्स शुरू कर सकते हो एंड पीपल आर वर्किंग देयर, उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती, ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं है, और जब आप चाहें उसे शिफ्ट कर सकते हैं कि क्लिनिक्स छोड़ के आप किसी भी दूसरे जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं। बड़ी ज़रूरत है हमें लेबोरेटरीज की। लेबोरेटरीज जब हम बात करते हैं तो लेबोरेटरीज जस्ट डज नॉट मीन अ क्लिनिकल लेबोरेटरी, बट अगर आप उसे अच्छे से एस्टेब्लिश करें उस क्लिनिकल लेबोरेटरी को, जो हम क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब बोलते हैं, तो उस लेबोरेटरी को ISO 17025 एक्रेडिटेशन कराएं एंड ट्राई टू लिंक योर वर्क और सपोर्ट टू द गवर्नमेंट सिस्टम ऑनगोइंग, जो हमारा लेबोरेटरी का नेटवर्क है उसके साथ जुड़ें और इस लेबोरेटरी को कॉलेज के साथ जोड़ें। और अगर इस फॉर्मल मैकेनिज्म में जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हमारे इस सेक्टर में बहुत कम है, इफ यू कैन कम इनटू दैट, so it's going to help the complete data generation or information generation in the field of outbreak reporting, vaccination and other things. So the lab is can be a very big help to the whole system. तो अगर लेबोरेटरी शुरू करनी है, सीधे डायग्नोसिस में, सीधे ट्रीटमेंट में फील्ड को जरूर सपोर्ट करेगी, बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन एक्सप्लोर एंड एक्सटेंड योर field of working and basically connect yourself with the government system, it's going to help not only you but also the government system. इसी तरीके से बहुत सारे एप्स बने हैं, डिजीज रिपोर्टिंग के एप्स हैं। साथ में यह है कि फार्मा इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स की जरूरत है। सबसे बड़े इश्यूज में देखता हूँ ना, बायोलॉजिकल के अंदर बहुत सारे, हम आज की डेट में देखते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत कम लोग हैं, अच्छे ग्रुप्स आ रहे हैं बट दे आर वेरी वेरी लिमिटेड एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हमने पिछले साल FMD का प्रोग्राम शुरू किया विच इज नेशन वाइड अंडर NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। वैक्सीन चेक की, कुछ वैक्सीन में हमें इश्यूज मिले और वो इश्यूज को सॉल्व करने के टाइम में जब हमने कहा कि हमें और इसमें ये चाहिए जो प्लेयर्स होंगे विच कैन कम इनटू दिस, तो देखने में आया कि जिनके कुल 3 से 4 आदमी हैं जो इसमें FMD की वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मैंने PPR के ऊपर सर्च करना शुरू किया, वी आर स्टार्टिंग अनदर प्रोग्राम ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑफ PPR एरेडिकेशन, सिर्फ 3 लोग निकल के आए जो लाइसेंस लेके वैक्सीन बना रहे हैं। क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए नेशनल प्रोग्राम शुरू किया तो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 1 आदमी है जो क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन बना रहे हैं। तो मतलब इस फील्ड में इतनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, कैनाइन की बहुत सारी इंपोर्ट हो रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट नील है। पोल्ट्री की डोमेस्टिक में भी है और बड़े ग्रुप्स हैं, तो पोल्ट्री के वैक्सीन में नहीं है, लेकिन लार्ज एनिमल वैक्सीन हो सकता है उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा हो, लेकिन अगर आप अच्छा बनाते हैं और इफ यू कैन स्टार्ट इन PPP मोड विद सम गवर्नमेंट्स, क्योंकि स्टेट बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हमारे पास करीब 20 एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें से मुश्किल से 2 लोग लाइसेंस के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं। वी हैव गॉट ग्रुप्स जिन लोगों ने एक आध स्टेट के साथ बात की है, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स इंक्लूडिंग वैक्सीन फॉर द स्टेट विद देयर हेल्प। हर्बल प्रोडक्ट की तो बहुत बड़ी डिमांड है और आज की डेट में ये जो वेटनरी आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, इथनो वेटनरी मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वो होने वाला है। 10 मिनट के बाद कर लो, है ना, बताओ। तो ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स का है, अब इसमें बड़ा इशू क्या है, हर्बल प्रोडक्ट्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग अभी भी ऐसे नहीं है कि इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स एंटर नहीं किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिटी नहीं निकाल के दे पा रहे हैं। और जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, हम लोगों ने अभी आयुष के साथ एक MOU किया है, वेयर वी वांट टू ब्रिंग दिस
herbal and non-conventional other than allopathic system, हम उसको पूरे करिकुलम में लेके आना चाहते हैं। और करिकुलम में लाने का मतलब है कि these alternatives to the antimicrobials or other things, they are going to help not only in economic treatment of the animal, but at the same time जो AMR के issues है उसको mitigate करने में भी this is going to support us in a big way. अब इसके लिए quality herbal products if you can develop, और उसके अपने अगर आप स्पेसिफिक उस फील्ड में आ जाएं, चाहे वो मतलब मेडिसिन हो, फीड सप्लीमेंट्स हो, या इम्यून बूस्टर्स हो, या अदर चीजें हों, तो you can basically come up in specific fields or in broader fields also. इसी तरीके से न्यूट्रिशन के उसमें चाहे मिनरल मिक्सचर में हो, फीड मिल्स बना रहे हैं लोग, उनके फीड के एप्स हैं जिसमें TMR कैलकुलेशन से लेके सब चीजें वो कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जैसे साइलेज मेकिंग एक बड़ा कंसेप्ट आया है जिसमें हम लोग खुद उसमें एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहे हैं, तो साइलेज मेकिंग की भी बात हो सकती है। इसी तरीके से ब्रीडिंग में हम लोग क्लीन मिल्क, क्लीन मीट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम में ही, और उसके बाद मार्केटिंग एप्स है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वी कैन इंक्लूड साइंटिफिक नॉलेज इनटू वन ऑफ दोज फील्ड्स एंड ब्रिंग ट्रेसेबिलिटी टू द लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, तो ये जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत सारी चीजें हम काम कर सकते हैं। अब एक कुछ जनरल स्लाइड्स मेरे विचार से इन्होंने दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सक्सेस क्या है। हम लोग जैसे लाइवस्टॉक सेक्टर में सबसे बड़ी चीज होती है कि वेटरनियंस को बोला जाता है जाके डेयरी खोल लो साहब, जाके अपना एक शीप फार्म बना लो, अपना साइंटिफिक उसकी मैनेजमेंट करें। जनरली जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट है कि जो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, पता नहीं इसमें आप लोगों के पास कुछ MBAs का कुछ लेक्चर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बट वो कहते हैं कि बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस यू हैव टू लुक इनटू द मार्केट अवेलेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट, और इनपुट कॉस्ट आपकी कहाँ से निकल के आएगी, तो वो इनपुट मटेरियल के लिए भी आपको एक सर्वेलेंस करने की जरूरत है। तो यहाँ मेरे को बेसिकली चेक करना है कि डिमांड कितनी है, गैप्स कितने हैं, सप्लाई में हम लोग कितना बड़ा एरिया कवर करेंगे, वो विल बी आवर क्लाइंट्स, व्हाट इज देयर पेइंग कैपेसिटी, व्हाट अदर थिंग्स वी हैव टू जनरेट इनटू दिस, एंड देन उसके बाद आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल है, कितनी लैंड अवेलेबल है, कितना कैपिटल अवेलेबल है, कितने अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है, और उसे रन करने के लिए ब्रेक इवन आपका कितने दिन के अंदर आ जाएगा, एंड देन आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या रहेगा, व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है बिफोर वी एक्चुअली अप्लाई आवर नॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस इनटू एनी वेंचर व्हिच वी वांट टू टेक अप इन दिस सेक्टर। और उसी के लिए आपको लगे कि सबसे बड़ा गैप ये है और सबसे बड़ी डिमांड इस चीज की है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेंचर। अब इसके अंदर दोनों चीजें हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी है और वेलफेयर के इश्यूज भी हैं, क्योंकि एनिमल साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खाली एनिमल वेलफेयर नहीं, ह्यूमन वेलफेयर की भी बात करता है। वन हेल्थ का कंसेप्ट हम देखते हैं, जितना अच्छा आप मिल्क या मीट प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स गोइंग टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स टू द ह्यूमन सेक्टर ऑल्सो। फूड सेफ्टी का जितना इशू है उसमें सबसे बड़ा रोल हम लोग प्ले करते हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ इनपुट मटेरियल वी आर ब्रिंगिंग इन, और इनपुट मटेरियल का मतलब है कि मुझे फार्म से बात करनी है। अब उसमें कुछ चीजें हम लोगों ने कुछ एंटरप्रेन्योर से बात की, कुछ लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, सो वी हैव गॉट सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। सेम मिल्क, वो उसमें थोड़ा उन्होंने विजिलेंस डाली, ट्रेसेबिलिटी डाली, जो उसका प्रोडक्शन सिस्टम था उसमें थोड़ी सपोर्ट की, और उन्होंने उसी मिल्क को A2 मिल्क के नाम से, उसी मिल्क को ऑर्गेनिक मिल्क के नाम से, उसी सिस्टम को एक नए फॉर्मेट में डाल के
लोगों ने, अभी मैंने देखा अमूल ने कहा कि ये हल्दी वाला दूध है, इट हैज गॉट टर्मरिक इन इट, एंड नेचुरली सबको पता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक एज अ मेडिसिनल, व्हाट आर द मेडिसिनल वैल्यू टू दिस। वो सारी चीजें अगर हम समझ के आते हैं कि है क्या, कोविड के दौरान में हमने देखा कि कितना लोगों ने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज यूज की हैं कि काढ़ा बनाइए, सब कीजिए, सो व्हाई नॉट वी यूज द सिमिलर थिंग्स इन आवर ओन सेक्टर। तो वो सब चीजें समझ के अगर हम बात करें तो एक सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर स्टेप वाइज हम इस सेक्टर में चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जिसमें हमें बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है उस प्रॉब्लम के अंदर। आपको उसके बाद जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, साथ में जो इनफॉर्मल एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स की जरूरत है, उसे आपको स्पेसिफिकली उस फील्ड के लिए तैयार करना है आपको। अनफॉर्चुनेटली मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, और इनफैक्ट दिस इज अ मैसेज टू द फैकल्टी, कि हम जब अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं ड्यूरिंग द 4 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, हमारी जो अप्रोच है विद इन द सेम सिलेबस, हमारी अप्रोच है कि हम आपको जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक ऐसा फॉर्मल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं कि जहां आप इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते नहीं हैं, हम आपको इंडस्ट्री फिट नहीं बनाते हैं। तो बेसिकली हमारी जो अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हमने थोड़ा वीक किया हुआ है। If we can actually start thinking from the very beginning, maybe second year onwards, जब हमारे पास सेक्टर को समझ की एक बात बन जाती है, स्टूडेंट स्टेबल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वहां हमें इंडस्ट्री फिट करने के लिए धीरे धीरे लोगों को उस एंगल पे लेके चलने की जरूरत है कि वी नीड टू मेक यू मोर इंडस्ट्री फिट। और अंदाजा लगे कि अगर मुझे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ानी है तो मुझे बायोलॉजिकल प्रोडक्शन का मैकेनिज्म समझाना चाहिए, मुझे डायग्नोस्टिक के वैलिडेशन की समझ आनी चाहिए, मुझे डायग्नोस्टिक की मार्केटिंग का मैकेनिज्म आना चाहिए, लाइसेंस कैसे मिलेगा, कैसे बनेगी। अगर मुझे न्यूट्रिशन पढ़ानी है तो मुझे पता लगना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, इसमें क्या साइलेज मेकिंग है, साइलेज मेकिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है फील्ड में, उसके लिए क्या नई हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, फील्ड में अगर हम करेंगे उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। इट मीन्स हमारा माइंडसेट वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों हम एमबीए की रिक्वायरमेंट करते हैं, क्योंकि एमबीए में ये सब चीजें बताई जाती हैं फ्रॉम दैट फॉर्मल एंगल। सो मुझे लगता है कि फॉर्मल, और उसी टाइम में हमें कुछ जो आसपास एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन और एक्सपीरियंस टू द सिस्टम। अब आपको जब आप इस एक आपके पास नॉलेज है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, रख दो यार, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये बेसिकली आपको एक नेटवर्क बनाने की रिक्वायरमेंट है। एंड नेटवर्क क्या बनाएंगे, नेटवर्क बनाने की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ये आपको आपका इनपुट साइड और आउटपुट साइड, मार्केट और बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, दोनों तरफ एक चीजों की जरूरत है। और अपने नो हाउ के लिए, अपने सपोर्ट के लिए विद इन द सिस्टम इन द सेंटर, आपको उस प्रोजेक्ट के लिए जो साइंटिफिक इनपुट है, जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजों की जरूरत है। और जब ये नेटवर्क आपको समझ में आ जाए, इसे आप फॉर्मलाइज कर लें, तब आप उसमें बात करें कि अब मैं इसमें पैसा लगा सकता हूं, और उसकी स्टेबिलिटी चेक करके कि कितनी स्टेबिलिटी इस सेक्टर में आएगी, कितना वर्दीनेस है, हम उसमें फाइनेंसिस लगाने की बात करते हैं। फाइनेंसिस के बहुत सारे सोर्स हैं, अभी मैं 2-4 स्कीम बताऊंगा जो हमारे यहाँ से हम लोगों ने शुरू की हैं। वहाँ उस तरह के फाइनेंसिस हम बैंक से अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, देन वी कैन बेसिकली एंटर इनटू अ वेंचर विद आवर बिजनेस आइडिया। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस आइडिया आपका बिल्कुल इनोवेटिव और नया ही हो। दिस आइडिया कैन बी अ रेपिटेशन फ्रॉम एनी अदर आइडिया, बट शुड बी अ न्यू आइडिया टू द न्यू एरिया, ताकि आप कहीं रिपीट भी करते हैं तो दूसरे वाले आइडिया को, और उसमें जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, सो दैट इम्प्रोवाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर इन ऑल द बिजनेसेस। और आप अपने एरिया के हिसाब से दूसरे एरियाज को समझते हुए उसे शुरू करें।
और शुरू में जरूर एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं, प्लीज उसको सिर्फ ब्लाइंडली शुरू करना और ये सोचना कि ये आज ही फायदा देना शुरू करेगा, नो, यू हैव टू बेसिकली लुक इनटू द टोटल कैपिटल कॉस्ट इन द बिगिनिंग, द रनिंग कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट आपकी बनती है उसके साथ आप उसके प्रॉफिट्स देखना शुरू करें और चेक करें कि आपका ब्रेक इवन कितने दिन में आ रहा है। व्हेन आर यू गोइंग टू रिकवर द इंटरनल रिटर्न्स ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। आपको जो IRR कैलकुलेट करना है वो चेक करना है कि आपको वापस में जो आपका कैपिटल कॉस्ट है कितने दिन में रिकवर हो जाएगा। अच्छे बिजनेसेस, कोई भी बिजनेसेस 2 साल के अंदर अगर हम कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं 100%, वो अच्छे ज़्यादा हैं। अगर आपको जितना लंबा टाइम लगेगा उतना आपको नुकसान रहेगा। और क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, पॉलिटिकल, लीगल चेंजेस और सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो आपके इस लॉसेस के ऊपर अगर अनसर्टेनिटी आती है तो इट कैन बिकम वेरी अनस्टेबल एंटरप्रेन्योरशिप, rather than if you can have quickly the recovery of your cost and then start gaining some profits out of it. उसमें जब टेक्निकोलॉजिकल या कोई दूसरे चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट प्लीज, जी सर, तो जितने चेंजेस आते हैं आपके, वो सारे चेंजेस को आप शायद अगर प्रॉफिट में होंगे तो कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करें। स्टार्टिंग में एक पायलट की तरीके से उस आइडिया को टेस्ट करें और जैसे ही आइडिया एस्टेब्लिश होते हैं आप उसे प्रॉफिट लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर दें और उसे प्रॉपर मार्केटिंग तक लेके जाएं। और इसमें मार्केटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। अगर मार्केटिंग प्रॉपर कर पाए तो नेचुरली ये रहेगा। जो कुछ चैलेंजेस इन्होंने लिखे कि इंफॉर्मेशन गैप तो नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी में, मार्केट अपॉर्चुनिटी की आपको पूरी समझ है कि नहीं है, जितने छोटे स्केल पे शुरू करेंगे उतने पोटेंशियल्स आपके रिवेन्यू के कम होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक के आपको आइडिया है कि नहीं है, कोई दूसरे सोर्सेज पता है कि नहीं पता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पता है कि नहीं पता है, और इसके अलावा आसपास का जो बिजनेस का जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द लीगल एनवायरनमेंट, वो आपको आइडिया है कि नहीं है। तो वो पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। और ये चैलेंजेस को जो मैंने अभी तक बात की, यही सब चैलेंजेस हैं। सॉल्यूशन वही है कि आपको वापस से सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, चाहे नेटवर्किंग के माध्यम से या छोटे ग्रुप्स को बना के। अब यहाँ पे मैं जरूर एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ इसमें अगर हम कहें कि हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं आपको कुछ यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे नई स्कीम्स में हमने ज्यादातर में एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम रखी हैं। और पहले एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम्स में जो भी हेल्प होती थी वो ज्यादातर कोऑपरेटिव्स के लिए हम लोग करते थे। लेकिन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आफ्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री, जो चेंजेस थॉट प्रोसेस हमारे इस डिपार्टमेंट में आए हैं उसके हिसाब से, चाहे वो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हों उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, और शीप के लिए, गोट के लिए, पिग के लिए, पोल्ट्री के लिए, फॉडर के लिए, हर चीज में हमने एंटरप्रेन्योरशिप की है। और ये जो स्कीम्स हैं जैसे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, तो अगर हम कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए आपका इसमें एस्टेब्लिशमेंट में लगेगा तो हम सब्सिडी 2 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 50%, जो 50% सब्सिडी है, इट्स नॉट लोन, मतलब हम 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये स्कीम हमारी NDDB के थ्रू रन होती है। तो इसके लिए भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो डिपार्टमेंट में हमारे डेयरी डिवीजन के साथ बात करके, कैटल एंड डेयरी डिवीजन है, वहां से ये अप्लाई कर सकता है और NDDB से भी इसे कर सकते हैं। अब इसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि यू हैव टू कम अप विद योर लोकल ब्रीड, और उसको आप, चाहे कैटल है या बफलो है, और उसके लिए
आपको जो इलाइट जर्मप्लाज्म है वो रेज करना है, उसके लिए दोनों ही चीजें हैं। आप इसे मिल्क के लिए तो रखें, लेकिन अगर आप जर्मप्लाज्म को प्रॉपरली इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकते हैं, पीटी प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं, देन इन दैट केस you can basically raise high quality male animals also for use as sires। अगर वहां तक हम इसमें कर सकें, और आजकल तो वो जीनोमिक सिलेक्शन इसमें इंक्लूड होने लगा है, तो इफ यू कैन इंक्लूड जीनोमिक सिलेक्शन इन दैट, प्रोबेबली इट्स गोइंग टू हैव हेल्प यू इन दैट। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, वो जो हमारे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंडर है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में हमने 4 सब मिशन इसमें डाले हैं। एक ब्रीड डेवलपमेंट है, वो लाइवस्टॉक और पोल्ट्री का है, जिसमें शीप, गोट, पिग, पोल्ट्री चारों हैं। जिसका भी आप बनाना चाहें उसके अंदर हमारे यहाँ सब्सिडी है। पोल्ट्री के अंदर अगर 50% सब्सिडी है इन सब में, और ये कैपिटल सब्सिडी में पोल्ट्री की सीलिंग है 25 लाख रुपए, शीप एंड गोट में सीलिंग है 50 लाख रुपीज, और पिग में है 30 लाख रुपीज। सो जो भी आपको लगता है, और मैं तो जरूर ये कहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हम निकाल के लेके आते हैं, जस्ट डू नॉट लुक दोज एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम फॉर द लोकल मार्केट। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप जब बात करें तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी समझ लें कि किस ब्रीड का, किस चीज का हम इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। अब इसमें जो ये हमारे चारों हमने पोल्ट्री, शीप, गोट, पिग, इनकी एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है। इसी तरीके से एक सबमिशन है फीड एंड फॉडर का। फीड एंड फॉडर में इसमें हमारी 100% कॉस्ट जो है हमारे ब्रीडर सीड्स की, फाउंडेशन सीड की या सर्टिफाइड सीड्स की, वो गवर्नमेंट बियर कर लेगी। और इसी तरीके के जो सब्सिडी हम इसमें देते हैं वो दे सकते हैं। इसमें जो कैपिटल कॉस्ट की है 50% कॉस्ट हम इसमें आपको कैपिटल कॉस्ट की सब्सिडी दे देंगे जो 50 लाख तक है, और एडिशनली सीड की कॉस्ट पे 100% फंडिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो ये सिस्टम है, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं चारों सिस्टम्स में, चाहे वो फीड फॉडर का हो, शीप गोट का हो, पोल्ट्री का हो, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है, हम लोग चाहते हैं कि यू एक्ट एज द एंटरप्रेन्योर शुड एक्ट एज हब टू अ कंप्लीट सिस्टम। हब का मतलब सेंटर में वो एक अपने आप एक सिस्टम एस्टेब्लिश करे जिसमें वो ब्रीडिंग फार्म रखें, अगर हैचरी है तो हैचरी रखें, एंड दे कनेक्ट विद नंबर ऑफ फार्मर्स, वो स्पोक की तरह काम करेंगे। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल जो हम बोलते हैं, उसमें ये है कि आप एक साथ नंबर ऑफ फार्मर्स के साथ जो जुड़े, वो लोग आपके लिए रियरर्स होंगे जो एनिमल को रियर करेंगे, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके लिए। आप उनको इनपुट मटेरियल सेल कीजिए, आउटपुट मटेरियल खरीदिए। आउटपुट मटेरियल से वापस में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर एश्योर्ड रिटर्न्स हैं कि ये चीजें आएंगी ही वापस, और मेरे पास इतना स्टॉक आ सकता है, दूध होगा तो इतना दूध बन सकता है, 1000 आदमी आपने जोड़ दिए, एफपीओ बना सकते हैं आप इसमें, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं आप अपने साथ, एक छोटी सी नॉन प्रॉफिट इसकी कौन सा ये बोलते हैं, स्मॉल स्केल की जो कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज इन्हें बोलते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। साइलेज मेकिंग में आप कर सकते हैं कि लोगों को अच्छा सीड प्रोवाइड कराएं और उनसे कहें कि आप अपना फॉडर क्रॉप को कैश क्रॉप की तरह प्रोड्यूस करें, हम आपसे वापस खरीदेंगे, साइलेज बनाएंगे, और उन्हीं में से जो आपके दूसरा एंटरप्रेन्योर कोई अगर बगल में है जिसको फीड की रिक्वायरमेंट है, आप सस्ता फीड उनको वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉडर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट साइलेज इज रियली चीप, और लोकल रिसोर्सेज के साथ इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चीप। तो उसके साथ जो कनेक्टिविटी आएगी, अब फार्मर को रिक्वायरमेंट है वेटनरी सपोर्ट की, फार्मर को रिक्वायरमेंट है ब्रीडिंग सपोर्ट की, फार्मर को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन सपोर्ट की, फार्मर को रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग सपोर्ट की। एज हब यू कैन प्रोवाइड दो सपोर्ट्स डायरेक्टली टू दीज फार्मर्स, और उनके जो प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ मिल्क, मीट, एनिमल्स, बर्ड्स, आप वो खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि यू कैन पुट योर मनी इनटू स्मॉल प्रोसेसिंग प्लांट आल्सो, यू कैन गेट इनटू दैट आल्सो।
और आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन से ज्यादा मैं रॉ को सेल कर सकता हूँ, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह की स्कीम में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करती है और इसी में इनोवेशंस निकाल के आए। मार्केटिंग के जो मैं सिस्टम्स देखता हूँ, अभी हम कई लोगों से बात करते हैं, वो मार्केटिंग के सिस्टम्स में उन्होंने आपके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मिल्क और मिल्क में क्वालिटी एंड देन द काइंड ऑफ सप्लाईज, उसमें एप्स के साथ कनेक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, छोटे छोटे लोगों ने अपने अपने एरियाज में, छोटे टाउनशिप में शुरू किया। So those entrepreneurs are basically not holding anything, but in the similar to like Amazon or Flipkart or any other agency, आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो उस तरह के लोग भी काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपको हमारे जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं लाइवस्टॉक सेक्टर के, इनके साथ जोड़ के यू कैन गेट दिस अंडर idea of our schemes in detail from our website, which is totally dedicated to the National Livestock Mission. तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग एक बार उन साइट को जरूर देखें, एंड द पर्सन्स और द वेटनेरियंस और द प्रोफेशनल्स जो लोग उसमें एंटर करना चाहें, वो लोग जरूर से इसमें एंटर करें, एंड प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू हेल्प द कंप्लीट सिस्टम. So Dr. Pampuri, thank you very much for inviting me to this particular Sir, thanks a webinar, lot for your and giving me this opportunity to interact with these students and faculties from the college. मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डायरेक्टली बेनिफिशियल हैं, और वो स्कीम्स में जितने एडवांटेजेस हैं, मुझे लगता है अगर 50% सब कैश कैपिटल सब्सिडी है, तो जो रिस्क है आपका एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने में, वो कवर हो जाता है इमीडिएटली, और उसे आप अगर शुरू करके रखें तो मुझे उम्मीद है कि पूरे सेक्टर का फेस चेंज आप कर सकते हैं। उसमें जो नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, नए सिस्टम का यूज करना है, उसमें हमसे जो सपोर्ट चाहिए, दे विल बी डायरेक्टली अवेलेबल टू यू ऑलवेज। और जो आप लोग कर सकते हैं एज सिंगल एंटरप्रेन्योर और एज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, you can actually go into that. So with these words, I would like to thank the team from Quest Kashmir, especially led by Dr. Pampuri and Dean Dr. Bande. Thank you very much. And if you have any queries or questions or comments, please feel free to come forward and come up. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for your detailed information about this entrepreneur, and particularly some words of, I can say, the wisdom from your end, how they can manage this entrepreneurship in livestock and then different schemes. And it's really, I could note that our curriculum is not in such a way that where we can have our graduates skilled to take entrepreneurship. So we need also some change in our curriculum also. Probably now the schemes on a national, this education policy has come up. Even we have national innovative and that startup program schemes coming up from the government of the India. They all are together aim towards this thing that our youth is skilled, enough skilled, so that they can take the challenge and they can make their earning out of those challenges. That's there, and it's in that direction we are trying to get our students aware of those opportunities and those skills they will have to imbibe. Before we take leave, it's for the students, for the participants to interact with our speaker of the day. It's now open. Anyone, if he wants to have some clarification or queries, please go ahead. Just unmute yourself and go ahead, please. Any of the participants there? I see the Professor Fazli somewhere there. Professor Fazli is somewhere there. Yes. Sir. Am I audible? Yes, sure.
I'm thankful to the speaker No, for sir. this lecture. Unfortunately, I could connect only for the last slide because I was held up in the convoy on the way, so I could not hear complete lecture. However, from the last slide, I could guess that it would have been very interesting, and I could have learned many things out of it. Anyways, our students heard it, and then hopefully it would be very much useful to them. Thank you, sir, for this nice talk. There is Akir Bhatt. Akir Bhatt wants to have something. No, sir. No, sir. Sorry. It was me. You have raised there. Any other student, any participant, please. Just unmute yourself or just raise your hands. If no one is there, our joint, yes. Dr. Azmat, Professor Azmat Alam is there anyway? Professor डॉक्टर साहब मुझे लगता है या तो लोगों को ज्यादा समझ में आ गया या तो लगता है कि यार ये चीजें तो पहले ही पता थी, नहीं क्या बताई है। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। Dr. Pampuri, Dr. Pampuri, yes sir, thank you very much sir. सर मलिक साहब आपने तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आई थिंक इसमें बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो स्कीम्स यहाँ पे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। आई होप स्टूडेंट्स विल टेक अप दीज अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर में वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अपना स्टार्टअप करेंगे। आई होप आप से हम बहुत इंफॉर्मेशन और भी फ्यूचर में लेंगे। व्हेनेवर हम कोई प्रोग्राम करेंगे हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Dr. Pandey sir. Before we will end this meeting, I think it's time for Dr. Noor Alam Tufani, who is also the course director of this program, just for the formal vote of thanks. Dr. Tufani. Dr. Tufani is there. Dr. Noor Alam Tufani. Am I audible to you, Dr. Tufani? Dr. Pottu, are you there? Yes, sir, I am audible. Okay, oh, yes. Please go ahead with the vote of thanks. I, on behalf of organizing committee, thank our eminent speaker, Dr. Praveen Milk, for sparing time, his valuable times. Thank you, sir, for sparing the valuable time and giving such a beautiful presentation. Thank you, sir. I also thanks the Dean, sir, to be present in the discussions. Fazli, sir, and our Azmat, sir. Thank you. And also the participants. I also thank them for their cooperations. Thank you, sir. All to you, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट सच बात बताऊं तो मजा नहीं आया सर बिल्कुल भी, क्योंकि मजा तब आता जब हम लोग आमने सामने होते, स्टूडेंट सामने बैठे होते और कुछ दो चार सवाल पूछते। जी सर, कोविड ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम लोग आमने सामने नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो जो भी है, बट जी होपफुली हम लोग किसी और मौके पे जब हालात सही हों तो हम आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, and we will see you physically over here in this valley of Kashmir, which is so beautiful. डेफिनेटली डॉक्टर साहब आने का बड़ा मन है, यहाँ से थोड़ी छुट्टी भी मिलेगी तो लगेगा थोड़ा रिलैक्सेशन की भी है। नहीं सर, हम कोशिश करेंगे जो ही हालात सही होंगे तो you are most welcome to this valley. Otherwise also nothing like that. We are here for you sir, there at your disposal anytime. Whenever you have some program to visit this valley, we are there and we can host you humbly, and you can say the खुशी से हम आपकी स्वागत करेंगे सर। Oh, thank you very much, Dr. Saab. Thank you very You are much. most welcome to this state, sir. And with these words, I thank you, sir. You have spared a lot of time with us, your precious time. We do realize that, and you have given an information, very I can informative talk about the schemes and other those
I can say there were some critical things which we all should note. That will be very beneficial for our students if they have to take some entrepreneurship and all that. Thanks a lot, sir. Thank you, Dr. Have a Sahab. Thank you nice very day, much sir. and have a Have a good nice day. day. Bye-bye. Bye. Bye.